अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड। बच्चों, आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो एक पोएम है जो हमारे बुक में यूनिट 2 में मौजूद है। पेज नंबर 20 की पोएम जिसका टाइटल है जस्ट नाउ। बच्चों, आपने ये वर्ड सुना होगा जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी फौरन, है ना, यानी इसी वक्त। जब कोई काम हमें फौरन करना हो तो हम उस वक्त इस फ्रेज का यूज करते हैं जस्ट नाउ। जैसे अभी ये वीडियो शुरू ही हुआ है तो हम कह सकते हैं द वीडियो हैज बिगन जस्ट नाउ। ओके, द वीडियो हैज बिगन जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ यानी अभी इसी वक्त, फौरन। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है। चलिए पहले हम पोएम को रीड करते हैं और साथ ही साथ उसके मीनिंग्स को भी समझेंगे। Found a peanut, found a peanut, found a peanut just now. Found a peanut, found a peanut, found a peanut just now. Just now I found a peanut, found a peanut just now. Now I'll repeat the lines. आपको भी साथ साथ में repeat करना है। Found a peanut, found a peanut, found a peanut just now. Just now I found a peanut, found a peanut just now. पहले हम पोएम को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके मीनिंग को भी समझेंगे। आगे है सेकंड स्टांजा में cracked it open, cracked it open, cracked it open just now. Cracked it open, cracked it open, cracked it open just now. Just now I cracked it open, cracked it open just now. आप भी रिपीट करेंगे। Cracked it open, cracked it open, cracked it open just now. Just now I cracked it open, cracked it open just now. Ate the peanut, ate the peanut, ate the peanut just now. Ate the peanut, ate the peanut, ate the peanut just now. Just now I ate the peanut, ate the peanut just now. Now you also repeat with me. Ate the peanut, ate the peanut, ate the peanut just now. Ate the peanut, ate the peanut, ate the peanut just now. Just now I ate the peanut. Just now I ate the peanut, ate the peanut just now. आगे लाइन से में जैसा कि पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, got a stomach ache, got a stomach ache, got a stomach ache, got a stomach ache just now. Got a stomach ache, got a stomach ache, got a stomach ache just now. Just now I got a stomach ache, got a stomach ache just now. Okay, you also repeat with me. Got a stomach ache, got a stomach ache, got a stomach ache just now.
Just now I got a stomach ache. Got a stomach ache just now. Call the doctor. Call the doctor. Call the doctor just now. Call the doctor. Call the doctor. Call the doctor just now. Just now. Call the doctor. Call the doctor just now. You also read with me. Call the doctor. Call the doctor. Call the doctor just now. Just now. Call the doctor. Call the doctor just now. Operation, operation, operation just now. Operation, operation, operation just now. Just now, operation, operation just now. Now you also read with me. Operation, operation, operation just now. Just now, operation, operation just now. चलिए अब आगे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, पिक्चर के हिसाब से ही लाइन्स आ रही है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है. फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर जस्ट नाउ. Feeling better, feeling better, feeling better just now. Just now, feeling better, feeling better just now. आप भी रिपीट करेंगे. Feeling better, feeling better, feeling better just now. Feeling better, feeling better, feeling better just now. Just now, feeling better. Feeling better just now. Just now, feeling better. Feeling better. Bye bye doctor. Bye bye doctor. Bye bye doctor just now. Bye bye doctor. Bye bye doctor. Bye bye doctor just now. Just now. Bye bye doctor. Bye bye doctor just now. रिपीट करेंगे. बाय बाय डॉक्टर, बाय बाय डॉक्टर, बाय बाय डॉक्टर जस्ट नाउ. जस्ट नाउ, बाय बाय डॉक्टर, बाय बाय डॉक्टर जस्ट नाउ. तो ये थी हमारी पोएम जिसे हम रीड कर रहे थे. अब यहाँ पर जो स्टांजाज हम पढ़ रहे थे उसके मीनिंग को भी समझ लेते हैं. तो फिर से हम पोएम को एक मर्तबा रीड करेंगे और साथ साथ उसके मीनिंग्स को भी समझेंगे. फर्स्ट स्टांजा में है फाउंड अ पीनट, फाउंड अ पीनट, फाउंड अ पीनट जस्ट नाउ. जस्ट नाउ आई फाउंड अ पीनट, फाउंड अ पीनट जस्ट नाउ. पीनट्स यानी क्या? पीनट्स कहते हैं मूंगफली को. ओके, मूंगफली जिसे हम शेंगदाना भी कहते हैं. तो वो जो शेंगदाना या पीनट होता है उसके बारे में लड़का कह रहा है कि फाउंड अ पीनट, मुझे एक पीनट मिला, मुझे एक शेंगदाने की जो शेंग है यानी फली जो है वो मिली. कब मिली? जस्ट नाउ, है ना. देखिए यहाँ पर बच्चों ये जो वर्ड यूज किया हुआ फाउंड, फाउंड ये वर्ड बनता है फाइंड से. फाइंड का मतलब होता है कोई चीज मिल जाना, उसका पास्ट टेंस हो जाता है फाउंड यानी मुझे मिल गया. फाउंड अ पीनट, फाउंड अ पीनट, फाउंड अ पीनट जस्ट नाउ यानी अभी अभी मुझे एक पीनट मिला हुआ है. अब जो मूंगफली होती है उस मूंगफली को मिलने के बाद उसने क्या किया, तो नेक्स्ट स्टांजा में बता रहे हैं. क्या है लाइंस? क्रैक्ड इट ओपन, क्रैक्ड इट ओपन, क्रैक्ड इट ओपन जस्ट नाउ. जस्ट नाउ आई क्रैक्ड इट ओपन, क्रैक्ड इट ओपन जस्ट नाउ. क्रैक्ड इट ओपन, क्रैक्ड का मतलब क्या होता है? देखिए छिलका निकालने के दो तरीके होते हैं. जैसे हम बनाना जब खा रहे होते हैं तो हम बनाना के छिलके को निकालते हैं,
उस तरह से छिलके को निकालने को कहा जाता है पील, PEEL, पील ऑफ। पील यानी छिलका निकालना। लेकिन जो मूंगफली या इस तरह के जो नट्स होते हैं, है ना, आपने देखा होगा, आपने अखरोट देखा होगा, तो अखरोट है या मूंगफली है या इवन आपने इमली देखी होगी, तो इनके ऊपर जो खौल होता है उसे हम पील नहीं करते बल्कि उसको हमें तोड़ना पड़ता है। तो जब हम इस तरह से उसे ओपन कर रहे हैं कि हम तोड़ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर वर्ब यूज किया हुआ है क्रैक्ड। क्रैक्ड इट ओपन यानी उसको क्रैक किया, उसको तोड़ा, मूंगफली को तोड़ा। क्रैक्ड इट ओपन, है ना, तोड़कर। आपने मूंगफली देखी है, जब उसका छिलका हमें निकालना होता है तो हम उसको प्रेस करते हैं और वो कट की आवाज के साथ वो टूट जाता है। तो जब इस तरह से टूटता है तो वही उसके ओपन करने का तरीका है। क्रैक्ड इट ओपन, उसको क्रैक करके तोड़कर ओपन कर लिया। क्रैक्ड इट ओपन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ आई क्रैक्ड इट ओपन, क्रैक्ड इट ओपन जस्ट नाउ, यानी अभी अभी मैंने, जब मुझे वो मूंगफली का जो एक मूंगफली मिली थी तो मैंने उसको क्रैक करके ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बता रहे हैं, ate the peanut, ate the peanut, ate the peanut just now, ate the peanut, ate the peanut, ate the peanut just now, यानी उस पीनट को उन्होंने एट कर लिया। एट ये वर्ड बनता है ईट से, ईट यानी खाना, और उसका पास्ट टेंस हो जाता है ATE, एट। तो एट द पीनट, मैंने वो मूंगफली खा ली। वो जो मूंगफली का दाना उसके अंदर से निकला था उसे मैंने खा लिया। तो एट द पीनट जस्ट नाउ, जस्ट नाउ आई एट द पीनट, अभी अभी मैंने उस मूंगफली के दाने को खा लिया। अब मूंगफली का दाना खाने के बाद वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ, जैसा कि इस पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, गॉट अ स्टमक एक, गॉट अ स्टमक एक, गॉट अ स्टमक एक जस्ट नाउ, है ना। जैसे ही मूंगफली खाई तो मूंगफली खाने के बाद, वो पीनट खाने के बाद उसके पेट में स्टमक एक यानी पेट में दर्द होना शुरू हो गया ना। तो गॉट अ स्टमक एक यानी पेट में दर्द होना शुरू हो गया। जस्ट नाउ आई गॉट अ स्टमक एक, अभी अभी मेरे पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो गया है, मेरा पेट दुखना शुरू हो गया है। तो पेट जब इस तरह दुखने लगा तो फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टांजा में है, कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर जस्ट नाउ ना। कॉल, कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना, आवाज देना। तो कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर जस्ट नाउ, यानी वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसे स्टमक एक हो गया है, उसका पेट दुखने लगा है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कह रहा है। अब जैसा पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, डॉक्टर और उसका स्टाफ। तो डॉक्टर आने के बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, ऑपरेशन, ऑपरेशन जस्ट नाउ ना। ऑपरेशन एक्चुअल में, ऑपरेशन तो बड़ी बीमारियों के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब उसको इलाज कर रहे हैं, जो भी उसको इंजेक्शन दिया होगा, उसको कुछ दवाएं पिलाई होगी वगैरह, तो उसको कहा जा रहा है ऑपरेशन जस्ट नाउ, यानी अभी अभी उसको ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद जब ऑपरेशन हो गया तो नेक्स्ट स्टांजा में है फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर जस्ट नाउ, जस्ट नाउ फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर जस्ट नाउ। कि अब वो कह रहे हैं कि अब मुझे फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर का मतलब होता है अच्छा लग रहा है, यानी जो पेट का दर्द था वो अब कम हो रहा है या खत्म हो रहा है।
और जब इस तरह से पेट का दर्द खत्म हो गया या कम हो गया ना, क्यों कम हो गया? क्योंकि डॉक्टर ने आकर उसका इलाज कर लिया हुआ है। और जब डॉक्टर ने इलाज करने के बाद अब वो फीलिंग बेटर हो गया है, तो लास्ट स्टांजा में कहते हैं बाय बाय डॉक्टर, बाय बाय डॉक्टर, बाय बाय डॉक्टर जस्ट नाउ, के डॉक्टर को वो बाय कह रहे हैं, जस्ट नाउ, बाय बाय डॉक्टर, बाय बाय डॉक्टर जस्ट नाउ। ने डॉक्टर को इस तरह से अलविदा कह दिया। तो यहाँ पर हर लाइन में जो ये वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं वो इसीलिए रिपीट किए जा रहे हैं कि आप उसको रिदम में गा कर, यानी जब आप पूरी क्लास एक साथ उसको जब पढ़ना शुरू करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन चूंकि अभी हम लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं, हम लोग घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर पर पढ़ाई करते वक्त हम अभी अकेले पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा स्कूल ओपन होगा तो हम एक साथ उसको क्लास में पढ़ेंगे। इस तरह यहाँ पर हमने देखा कि एक जो बॉय है उसको पहले फाउंड द पीनट, फिर उसके बाद क्रैक्ड पीनट। ना देखिए क्या क्या एक्शन किया, हम एक मर्तबा उससे तरतीबवार लगा लेते हैं। क्या किया? पहले फाउंड द पीनट, उसके बाद क्रैक्ड पीनट, उसके बाद एट द पीनट, उसके बाद स्टमक एक, उसके बाद कॉल द डॉक्टर, उसके बाद ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर के बाद बाय बाय डॉक्टर। इस तरह से ये सारी स्टेप्स हमारे सामने यहाँ पर हो रही थी। इन स्टेप्स के बाद कुछ एक्टिविटीज देखते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज जो पोएम के नीचे ही लिखी हुई हैं। पोएम के नीचे क्या एक्टिविटीज हैं? तो उसमें फर्स्ट एक्टिविटी है रीड द वर्ड्स एंड से व्हाट्स रॉन्ग विथ दीज पीपल, है ना। नीचे कुछ पिक्चर्स और कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, उन पिक्चर और वर्ड्स को देखना है और हमें बताना है कि जो पिक्चर में जो शख्स है उसे क्या तकलीफ हो रही है। पहली पिक्चर हमारे सामने आ गई है, जो हम अभी पोएम पढ़ रहे थे उसी में ऐसा ही हो रहा था। उसे क्या तकलीफ हो रही है? उसे स्टमक एक है ना। स्टमक एक जैसा अभी हमने पोएम में देखा, स्टमक एक का मतलब क्या होता है? पेट दुखना या पेट में दर्द होना। तो जैसा कि पिक्चर में हमें नजर आ रहा है इस लड़के को स्टमक एक हुआ है, तो उसके लिए हम इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, दिस बॉय हैज अ स्टमक एक, दिस बॉय हैज अ स्टमक एक। ये जो लड़का है इसे स्टमक एक हो गया है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, राइट। तो पेट के दुखने को इस तरह से बयान करते हैं, जैसे अगर आप में से किसी को पेट दुख रहा हो तो क्या कहेगा? आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ स्टमक एक, यानी मेरा पेट दुख रहा है। यहाँ पर चूंकि इस लड़के की बात चल रही थी इसलिए हमने यूज किया हुआ है दिस बॉय हैज अ स्टमक एक, उस लड़के का पेट दुख रहा है। आगे पिक्चर हमारे सामने है, यहाँ पर इस पिक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है? इस पिक्चर को देखकर हमें समझ आ गया हुआ है कि ये एक्चुअल में हेडेक है। हेडेक का मतलब होता है सर का दुखना, हेडेक यानी सर का दुखना। तो हम यहाँ पर उसका किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं कि दिस वुमन हैज अ हेडेक, दिस वुमन हैज अ हेडेक, है ना। उस औरत का सर दुख रहा है, उस औरत के सर में तकलीफ है। इसी तरह जब हम अपने बारे में कहेंगे तो हम क्या कहते हैं? आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में तकलीफ है, मेरा सर दुख रहा है, आई हैव अ हेडेक। ओके, तो ये हो गया हेडेक के बारे में। जहां पर इस तस्वीर को देखने के बाद क्या लग रहा है कि वो औरत जो है वो खांस रही है, तो इसे कहा जाता है कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है? कफ यानी खांसी और कोल्ड यानी सर्दी हो जाना, है ना। आजकल मौसम सर्दियों का चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों को सर्दी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी नाक बहना शुरू हो जाती है, बार बार छींक आ रही होती है। तो ये मौसम के हिसाब से हमें ऐसी तकलीफ हो जाती है।
कफ एंड कोल्ड यानी खांसी और सर्दी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस वुमन हैज या दिस गर्ल हैज कफ एंड कोल्ड, है ना। इस औरत को सर्दी और खांसी हो गई है, राइट। सर्दी और खांसी हो जाना। इसी तरह जब हम अपने बारे में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, आई हैव कफ एंड कोल्ड, या उसमें कभी कभी इस तरह कहा जाता है आई हैव गॉट कफ एंड कोल्ड, आई हैव गॉट कफ एंड कोल्ड, यानी मुझे सर्दी बुखार हो गया है, सर्दी खांसी हो गई है। ओके यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यस इस बच्चे को फीवर है ना, फीवर यानी बुखार होना। तो इस बच्चे को बुखार है। अब बुखार होने की वजह से हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, दिस बॉय हैज फीवर, दिस बॉय हैज फीवर। जब हम अपने बारे में कहेंगे तो हम कहेंगे आई हैव गॉट फीवर, है ना, मुझे फीवर है यानी मुझे बुखार आ गया हुआ है। इस तरह ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरह अलग अलग बीमारियां होती है ना। पोएम में हमने पढ़ा स्टमक एक, उसके साथ साथ हमने यहाँ पर देखा हेडेक, देन उसके बाद कफ एंड कोल्ड और लास्ट में फीवर ना। ये ऐसी कॉमन बीमारियां हैं। बच्चों यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखें, आपको ये जो वर्ड्स सिखाए जा रहे हैं ये इसलिए सिखाए जा रहे हैं क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमें भी हो जाती है। तो हम जब स्कूल में अपने टीचर्स को कहते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो हमें कोशिश करना है कि हम अपने टीचर से इंग्लिश में बात करते हुए इन वर्ड्स को यूज करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज थी, उसके बाद दी हुई है जिसमें कहा हुआ है फॉर्म पेयर्स एंड यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट डिफरेंट डायलॉग्स बिटवीन ए एंड बी। आपको ये एक्चुअल में क्लासरूम एक्टिविटी थी जिसमें आपको दो दो स्टूडेंट्स की पेयर बनाना है और वो लोग आपस में कुछ डायलॉग्स प्रिपेयर करके उसको प्रेजेंट करेंगे, यानी क्लास के सामने आकर सुनाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दो गर्ल्स बनी हुई हैं, दोनों को ए और बी नाम दिया हुआ है। जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस हैं वो ए के लिए हैं और जो येलो कलर है वो बी के लिए है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी के बीमारी के बारे में, किसी की कैफियत पूछते वक्त, या हमें कोई ऐसा लग रहा है बीमार है, तो उस वक्त हम इन वर्ड्स और इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ए के लिए, व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर का मतलब क्या होता है, क्या हुआ है या क्या बात है। और ऐसा क्यों पूछते हैं, जब हमें कोई चीज थोड़ी सी नॉर्मल से अलग लगती हो। जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड है, वो रोजाना स्कूल आता है, आप साथ में ही बैठते हो, लेकिन एक सुबह जब आप स्कूल में आए तो आपने देखा कि वो बिल्कुल उदास होकर बेंच के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ है, खामोश है, ना तो कुछ बोल रहा है, ना वो हंस रहा है, ना कोई उसके अंदर हरकत नजर आ रही है, वो खामोश बैठा हुआ है। तो ऐसे में जब हम उसे देखते हैं तो हमें थोड़ा अजीब लगता है ना कि इसको क्या हो गया। तो उस वक्त हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, तुम्हें कुछ हुआ है। इसी तरह उसके नीचे की जो क्वेश्चंस है ना, वो भी ऐसा ही पूछ सकते हैं, आरंट यू फीलिंग वेल। फीलिंग वेल का मतलब होता है तबीयत अच्छी होना, अच्छा महसूस करना। तो आरंट यू फीलिंग वेल, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। या ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट्स रॉन्ग। व्हाट्स रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि तुम्हें क्या हुआ है ना, तुम्हारे साथ क्या हो गया है कि तुम इस तरह से उदास नजर आ रहे हो। ये 3 क्वेश्चंस है। अब उसके जवाब में हम क्या कह सकते हैं, उसके जवाब में जो लिखा हुआ है आई हैव। अभी हमने देखा ऊपर के एग्जाम जो एक्टिविटी थी उसमें 4 बीमारियों के बारे में कि आई हैव स्टमक एक, आई हैव अ हेडेक और आई हैव
आई हैव गॉट कफ एंड कोल्ड, या फिर आई हैव फीवर। इस तरह से यहाँ पर उसका आंसर बन जाएगा आई हैव। या अगर आप इस तरह से भी कह सकते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आ रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा है सर भी दुख रहा है, बुखार भी लग रहा है, सर्दी भी है, सुस्ती भी आ रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें समझ नहीं आता ना कि हमें हुआ क्या है। तो उस वक्त हम ऐसा कह सकते हैं आई डोंट नो। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे फ्रेंड्स के साथ हमें कुछ उसका बिहेवियर अजीब लगता है तो हम पूछते हैं व्हाट्स द मैटर। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो कहेगा कि आई हैव फीवर, आई हैव कफ एंड कोल्ड, आई हैव स्टमक एक, या जो भी प्रॉब्लम हो रहा हो। या फिर वो आई डोंट नो भी कह सकता है। जब हमें अपने फ्रेंड के बारे में इस तरह मालूम पड़े कि उसे कोई तकलीफ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तकलीफ सुनकर बस खामोश बैठ जाना है, तो हमें आगे कहना चाहिए ओ आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन यहाँ पर सॉरी का मतलब ये होता है कि हम उससे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। और फिर आगे पूछ लेना है कैन आई हेल्प, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें कुछ दवा चाहिए, पानी चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कैन आई हेल्प यू ना। अगर उस फ्रेंड को जरूरत होगी तो वो कहेगा यस, या फिर वो कह सकता है नो इट्स ऑलराइट, नो इट्स ऑलराइट। ओके, आगे है नीचे के कुछ और जुमले जो वी मस्ट टेल द टीचर, और है यू मस्ट सी अ डॉक्टर, है ना। जब हमें पता चले कि अपने फ्रेंड को कोई तकलीफ है, वो बीमार है, तो हम क्या कह सकते हैं वी मस्ट टेल द टीचर, टीचर को बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि जब हम टीचर को बताएंगे तो टीचर हो सकता है कि उसको रेस्ट करने के लिए घर भेज दे, या फिर कुछ तो टीचर करेंगे, है ना। और ज्यादा ही तकलीफ है तो वी मस्ट सी अ डॉक्टर, हमें डॉक्टर को मिलना चाहिए। और टीचर फिर क्या कहेंगे टेक रेस्ट या फिर गो होम, है ना। इस तरह देखिए आपको क्या करना है, दो दो की जोड़ियां बनानी है और आपस में एक दूसरे से इस तरह से बात करना है। पहले एक स्टूडेंट ए बन जाएगा, वो अपने फ्रेंड से क्वेश्चन करेगा और बी वाला उसका आंसर करेगा। और यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करें, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है। देखिए बच्चों, अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर पाते। तो अगर हम इसी तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस रोजमर्रा जिंदगी में यूज करना शुरू कर दें तो हम लोग भी इंग्लिश में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो आपके लिए एक्टिविटी है, अभी चूंकि स्कूल तो बंद है, लेकिन आप आपके गली मोहल्ले में, आपके घर में आपके जो भी भाई बहन हो, आप उनके साथ ये कन्वर्सेशन और डायलॉग्स तैयार कीजिए और आपस में एक दूसरे के साथ उसको प्रेजेंट कीजिए। और प्रेजेंट करने के बाद आज आप से व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर अपने क्लास टीचर को भी भेज सकते हैं। ऐसा करने से दूसरे बच्चों को भी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए यह था आज का हमारा लेसन। ये वीडियो आप BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 5 इस चैनल पर देख रहे हैं। ये बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी जिसे हम शॉर्ट में BMC कहते हैं, BMC एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये वीडियो आपको पेश किया गया। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में भी बता। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।